بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأكرم سيدنا مولانا أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذه الساعة إلى يوم القيامة والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يقتدي لنفسه ومن ضل فإنما يزل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤدبين حتى نبعث رسولا صلوات مجلس ہے کل آخری مجلس اور آخری زحمت ہے خدا بند عالم آپ کی زحمات آپ کی آمد آپ کی سماعت قبول فرمائے اور ہمیشہ ہر طرح سے ان ذوات مقدسہ کی خدمت نصرت اطاعت شباہت بننے کی توفیق اور اسی طرح جو حضرات جس اعتبار سے جس پہلو سے جس زاویے سے جس طریقے سے جس انداز سے خدمت کر رہے ہیں پروردگار ان کی خدمت کو قبول فرمائے ان کی روزی میں صحت میں توفیقات میں اضافہ کرے مزید خدمت کی توفیق دے بچوں کو نیک بنائے آخرت خیر فرمائے مرحومین خاص طور سے والدین کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے البتہ یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں آپ اگر بیٹے ماں کی مجلس میں شریک ہوں تو مقام شکریہ نہیں ہے نہ کوئی احسان ہے نہ ہم نے کوئی احسان کیا ہے نہ آپ نے احسان کیا ہے نہ فرش عزا بچھانے والوں نے احسان کیا ہے نہ تبرک کا اہتمام کرنے والوں نے احسان کیا ہے بلکہ ندامت ہر ایک کو ہے اے کاش زیادہ کرتے ہر ایک کے لب پہ دل میں دعا ہے پروردگار توفیق دے زیادہ سے زیادہ ماں کی خدمت کر سکے کیونکہ بیوی دو عالم ہر ایک کی ماں ہے امت کی ماں ہے ماں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ماں کی کئی قسمیں ہیں مختلف درجات ہیں ماں کے
بہتر بزرگ بہتر جاتے. میں جوانوں سے بتلانا چاہتا ہوں تاکہ صرف مجلس نہ سمجھ کے آئیے کہ مجلس ہو رہی ہے مولانا صاحب پڑھ رہے سن رہے ہیں. نہیں, یہ آپ کی ماں کی مجلس ہے. آپ شریک نہیں ہیں. بیٹا شریک ہوتا ہے مجلس میں, بیٹا بانی ہوتا ہے. بیٹے کیا ہوتے ہیں؟ آپ چہلام برسیز دیسے وغیرہ مختلف مجلسیں کرتے ہیں. جن کی والدہ کی مجلس ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ بانی ہوتے ہیں. بانی کا مطلب کیا ہے؟ بنیاد رکھنے والے, سارا انتظام کرنے والے, پہلے سے حاضر. سچ ہے. آپ اس کے بانی ہیں. ہائے ہائے ہائے. آپ ممکن ہے بچوں میں اختلاف ہوتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے سماج میں, آپس میں سگے بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن خدا نہ کرتا ماں کا انتقال ہو جائے تو سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں. ماں کی تدفین کا مسئلہ ہے, ماں کی مجلس کا مسئلہ ہے, سب اپنے اختلافات کو بھول جاتے ہیں, کیونکہ اس سے اچھا ذریعہ کوئی اتحاد کا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. تو لہذا ہمیشہ اور ہمیشہ اس کے بانی چند ایک لوگ نہیں ہیں, آپ ہر ایک ہے بانی, کیونکہ ہر ایک بیٹا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ ہر ایک بیٹا ہے. تو ہر ایک اس مجلس کا, اس عزا کا, اس تعزیت کا, اس اہتمام کا, اس انتظام کا بانی ہے. جس سے جو ہو سکتا ہے, جس طرح سے ہو سکتا ہے, جس انداز سے ہو سکتا ہے, انجام دے. یہ نہیں کہ فلاں محلے والے کر رہے ہیں, فلاں بستی والے کر رہے ہیں, معافی چاہتا ہوں, بہت معذرت. میرا مقصد بھی طنز کرنا نہیں ہے, چونکہ اگر اس سے ہٹ کے ہمارے پاس کوئی یونٹی اور اتحاد کا کوئی مرکز نہیں ہے, اگر ان کے نام سے متحد نہیں ہوئے تو کبھی نہیں ہوئے. فلاں انجمن والوں کا پروگرام ہے نہیں, نہ کسی انجمن کا ہے, نہ کسی اذا خانے والے کا ہے, نہ کسی محلے والے کا ہے. یہ بی بی فاطمہ کا ہے, اور بی بی فاطمہ سب کی ماں ہے. میں بھی مجلس پڑھنے آیا ہوں, اپنی ماں کی مجلس پڑھنے آیا ہوں. آپ سننے آئے, اپنی ماں کی مجلس سننے آئے. تو ان موقعوں کو ضائع نہیں ہونے دیجیے. آج چلا گیا, کل آخری دن ختم, پتہ نہیں آئیں آج کون زندہ رہے, کون زندہ نہ رہے. ایک بات اور کہہ دوں, جناب فاطمہ صرف سادات کی ماں نہیں ہے. ذہن سے نکال دیجئے گا کہ سوچیں آپ ذہن میں آئے کہ مولانا نے بات کی صرف سادات کی, تمام امت کی ماں ہے. تمام امت کی, ہر ایک سادہ خیر سادہ, ہر ایک کی ماں ہے. یہ ذکر ہر ایک کی ماں کا ذکر ہے, کیونکہ بی فاطمہ نبی نے کیا فرمایا, علی یعنی انا و انتا, ہم اور آپ, ابوا حاضر امہ, اس امت کے باپ ہے. تو جناب فاطمہ کیا ہوئی؟ سکی ماں ہے. ماں کی کئی درجے ہوتے ہیں, بس ایک انفارمیشن کے لیے, اطلاع کے لیے بچوں. ایک ماں وہ ہوتی ہے جو پیدا کرتی ہے, ایک ماں وہ ہوتی ہے جو پیدا کرتی ہے. سب کے دائرے الگ الگ ہیں, احکام بھی الگ الگ ہیں. ایک ماں وہ ہوتی ہے جو پیدا کرتی ہے, وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں, سب چیز جانتے ہیں, سب دیکھتے ہیں, بس تھوڑا توجہ میں جوانوں اور نوجوانوں کو دلا دوں. ایک ماں جو پیدا کرتی ہے, ایک ماں وہ ہوتی ہے, کیا وہ ایک سلوات بھیج دیں
پیدا کرتی ہے. ایک ماں وہ ہوتی ہے جو باپ کی زوجہ ہوتی ہے. بس سمجھ گئے؟ آپ کی ماں نہیں ہے. ماں کا بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, مرد نے دوسری شادی کی, تو وہ آپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے, وہ بھی آپ کے لیے محرم ہے, وہی سارے احکام. تیسری ماں ساس ہوتی ہے, بیوی کی ماں, یہ بھی ماں کے درجے پہ ہوتی ہے. اسی لیے دیکھیں اگر خدا نہ کرتا, خدا کبھی کسی کا ایسا نہ ہو, میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے, طلاق ہو جائے, تو بیوی تو نامحرم ہو جائے گی, لیکن ساس محرم رہے گی, چونکہ ماں کا عنوان کبھی ختم نہیں ہوتا. جو ایک مرتبہ ماں کے عنوان میں آ گئی, اس کا عنوان, بیوی کا عنوان ختم ہو سکتا ہے. طلاق ہو گیا, عورت آپ کی زوجہ نہیں ہے, کسی اور کی زوجہ بن, لیکن اس کی ماں جو ماں کے عنوان میں آ گئی, کیونکہ اتنا پاکیزہ لفظ ہے پروردگار نے, لہذا اسے باقی رکھا. اسی طرح مرد ساس اور سسر کا مسئلہ ہوتا, بہو اور سسر کا مسئلہ بیان, چونکہ میں ماں پہ گفتگو کرنی ہے. ایک وہ ماں ہوتی ہے جو شیر دیتی ہے, دودھ پلاتی ہے. اگر کسی ماں نے, کسی عورت نے, کسی خاتون نے پلا دیا, تو وہ بچہ اس کا بیٹا, بیٹے کا مقام, اور ماں, عورت ماں کے مقام پہ ہو جائے گی. یہ ایک ماں ہے جو قرآن نے بیان کی, ازواج نبی کے لیے. ازواج ہو امہاتہم, تمہاری ماں ہے. جناب ام سلمہ, جناب خدیجہ, کسی میں شک؟ قرآن کہہ رہا یہ ساری کیٹیگریز ماں کی ہے. اور ایک ماں اور ہے, سب کے دائرے الگ الگ ہے, سب کا سرکل, پاور کا سرکل الگ الگ ہے, سب کے احکام الگ الگ ہے. اور ایک ماں وہ ہے جو پوری امت کی ماں ہے. سب کا دائرہ چھوٹا سا, یہ پوری امت کی ماں ہے. سب کے دائرہ بھی سن لیجئے, وہ ماں ان سب میں, یعنی امت کی ماں کو ہٹا کے, جناب فاطمہ کو ہٹا کے, دیگر تمام ماؤں کا دائرہ بہت چھوٹا ہے. وہ اپنی ماں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس کا دائرہ جب تک زندہ رہتی ہے, توجہ فرمائیے گا, جب تک زندہ رہتی ہے خدمت کرتی ہے, مرنے کے بعد خدمت نہیں کر پاتی. کچھ دن کے بعد بچے بھی بھول جاتے ہیں, لیکن وہ ماں جسے حضرت معصومہ فاطمہ کہتے ہیں, اس کی عنایتوں کی نظر 1400 سال سے ہمیں دیکھ رہی ہے کہ میری امت کے بیٹے ہیں. اس ماں کی عنایت کی نظر آج بھی آپ پہ ہے. یعنی دائرہ ایک دیکھا, وہ مر گئی تو ختم, وہ باپ کی خدمت نہیں کر سکتی, لیکن وہ ماں آج یاد کرتی ہے. ایک دائرہ, تمام ماں کا دائرہ روز محشر حدیث ہے, کلو حسبین و نسبین منقطع. روز محشر سارے حسب اور نسب منقطع ہو جائیں گے. باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جائے گا, ماں بیٹے کا رشتہ ختم ہو جائے گا. ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا, چونکہ تو ماں بیٹے کی ہے. ماں بیٹے کو اور بیٹا نہیں پہچانے گی. کیوں؟ کیونکہ رشتہ منقطع ہو گیا, ختم ہو گیا. لیکن یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کی ماں کا رشتہ وہاں بھی باقی رہے گا. یہ رشتہ, اس مامتا کا رشتہ باقی رہے گا. مامتا کیسی ہوتی ہے؟ بیٹا جب تک بھوکا رہتا ہے کھانا نہیں کھاتی, بیٹا اذیت میں ہو تو وہ چین سے نہیں رہتی. تو اس ماں کی مامتا بھی اسی طرح ہے. فرماتی ہے فاطمہ, اس لیے فاطمہ کہی گئی, جب تک ایک ایک چاہنے
परेशान होकर नहीं देख सकती, अजाब में मुब्तला नहीं देख सकती, जहन्नम में जाता हुआ नहीं देख सकती। कितनी करीम माँ, उसकी ममता देखे। मुद्दतों के बाद 1400 साल के बाद न जाने इसके बाद कितना सिलसिला चलेगा। हर एक बेटे के लिए जामीन है कि जब तक एक एक चाहने वाला एक एक मेरा बेटा जन्नत में नहीं जाएगा, फातिमा कदम नहीं रखेगी। फातिमा इसीलिए फातिमा है, जुदा करने वाली, बुराई से, जहन्नम से, अजियत से, अजाब से, परेशानी से, भय से, कमी से जुदा करती है। इसीलिए फातिमा फातिमा है। एक तलवार भेज दे। आखिरत में भी दिखाई। ये जंग ईरान इराक की जंग होती थी, तब उनके रिपोर्टें लीजिए जो लोग जंग पे लड़ते थे, मेरे उस्ताद भी थे और बहुत से लोगों ने ये रिपोर्ट की कि जब हम पे कोई सख्त सामना होता था, मगर तो हम यानी भी कहते हैं, लेकिन जब सख्त सामना होता था तो हम यानी नहीं कहते थे, या ज़हरा, और हमें कामयाबी मिलती थी। क्यों? क्योंकि ये वही नुस्खा है जो नुस्खा अली ने इस्तेमाल किया। जब मुसीबत आई तो या फातिमा, ऐसा माँ जैसे बेटा। आप देखिए, तजुर्बा करके देखिए, बीवी फातिमा कभी भी कोई मुसीबत आए, कोई किसी तरह की परेशानी नजर आए, आप या ज़हरा करिए या फातिमा करिए, अगर न टल जाए तो कहिए। माँ अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकती, ममता का तकाजा है। ठीक है, मौत का हिजाब है बीच में, मौत का हिजाब है, लेकिन इसके बावजूद की पावर है, ताकत है। इसीलिए रवायत में सादिक आले मोहम्मद से रवायत है, ममता का दामन देखेंगे कितना वसी और कितना अजीज है दामन इसी दुनिया में। अगर तो रब्बी फातिमा इन्ना अतफाल शिया मिनल मोमिनीन, तो रब्बी फातिमा इन्ना अतफाल शिया मिनल मोमिनीन, तो रब्बी फातिमा। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, मोमिन शिया का बच्चा जो अपनी आगोश में पल रहा है, बज़ाहिर माँ की आगोश में है, हकीकत में फातिमा उसकी तरबियत कर रही है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, अगर किसी के बच्चे की तरबियत आगोश फातिमा में हो रही है तो वो कितना बुलंद होगा। ये सारी कोशिशें क्यों है? मोमिनीन के बच्चों की, मोमिनीन शर्त है, मोमिनीन के बच्चों की तरबियत भी फातिमा क्यों करना चाह रही बीवी फातिमा? ताकि शबाहत दे दी, हसनैन जैसा बना दे, हुसैन जैसा बनाए, हसन हुसैन जैसा बनाए। तो बड़े खुशनसीब वो माए हैं, वो मोमिना खातून बड़ी खुशनसीब है जिन्होंने इस अपने आप को इस मकाम पे फैज किया कि उनके बच्चों की तरबियत भी फातिमा कर रही है। तब हमारी जिम्मेदारी, माँ तो अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर रही है ना, तो बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम क्या करें? उनकी सीरत को, उनके किरदार को अपने किरदार का आईना बनाएं। बीवी माँ
ماں بتلائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا ماں ہمارے لیے کیا وصیت ہے، ماں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، اور جو انہوں نے فرمایا ہے اسے سینے سے لگائیں، اپنے کردار میں اتاریں. اور یہی سب سے بڑی نصرت ہے، سب سے بڑی نصرت یہ ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو اپنے کردار میں اتاریں. اور یہ صرف عقیدے سے نہیں، عقیدے میں ہم نے اتار دیا، یہ ساری چیزیں جہاں کردار کی بات آتی ہے وہاں پر عمل کی بات آتی ہے. شباہت عقیدے میں نہیں ہے، شباہت کردار سے ہے، شباہت عمل سے ہے، شباہت سیرت میں ہے، شباہت رفتار و گفتار میں ہے، اخلاق میں ہونی چاہیے. جیسا اخلاق ان کا تھا، بی بی توفیق دیجئے ہمارا اخلاق بھی ویسا ہو. جیسا کردار ان کا تھا ویسے ہی کردار ہمارا بھی ہونا چاہیے. جیسا رفتار و گفتار ان کی تھی ویسے ہی ہماری ہونی چاہیے. جو انداز ان کا تھا وہی انداز ہمارا ہونا چاہیے، تاکہ دنیا دیکھے بیٹے بالکل ماں پہ گئے ہیں. دنیا تانا نہ دے. اس بات کو یاد رکھیے گا اگر بیٹے بنی یا تو نام خارج کر لیجئے یا تو ہم اپنے آپ کو بدلیں. کہ اگر بیٹے ہیں تو بھرم رکھنا ہے اس کردار کا، کیونکہ تعارف کے دو ذریعے ہوتے ہیں نا، تعارف انٹروڈکشن، پہچان، پریچے، دو طریقے سے ہوتا ہے. کبھی بڑے کا تعارف، توجہ فرمائیے گا، بڑے کبھی چھوٹے کا تعارف بڑے کے ذریعے سے ہوتا ہے نا. چھوٹے کا تعارف بڑے کے ذریعے سے ہوتا ہے. تعارف سمجھتے ہیں نا نوجوان، ہے نا، انٹروڈکشن، پہچان. اور کہیں بڑے کا تعارف چھوٹے کے ذریعے سے ہوتا ہے. کہاں پہ کیسے ہوتا ہے وہاں بہتر جانتے ہیں. جہاں پہ لوگ جس کو جانتے ہوتے ہیں اسی کے ذریعے سے تعارف ہوتا ہے. آپ کے آفس میں آپ کا بیٹا چلا جائے، آپ کے آفس میں آپ کا بیٹا چلا جائے تو بیٹے کا تعارف کس کے ذریعے سے ہوگا؟ فلاں کے صاحبزادے ہیں، فلاں کے صاحبزادے ہیں. ہر ایک سے پہچان کرائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ لوگ وہاں پر آپ کو پہچانتے ہیں، بیٹے کو نہیں پہچانتے. لیکن آپ بیٹے کے اسکول چلے جائیے، کالج چلے جائیے، اب آپ کا تعارف بیٹے کے ذریعے ہوگا، دوستوں سے، ٹیچر کے ذریعے سے. فلاں کے فادر ہیں، فلاں کے باپ ہیں، فلاں کے پاپا ہیں. لوگ جہاں جس کو دیکھتے ہیں، جس کو جانتے ہیں، اس کے ذریعے سے تعارف ہوتا ہے. جب تک یہ باحیات تھے تعارف کراتے گئے، حاضر شیعتنا، حاضر شیعتنا، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں. اب یہ چلے گئے، دنیا ہمیں دیکھ رہی
अब उनका तारुफ हमारे जरिए से होगा, हाय हाय बाजार में, स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में। लोगों की नजर हमारे ऊपर है, हमें देखते जाएंगे, उनकी मंजिल को पहचानते जाएंगे, हमारे इल्म को देखते जाएंगे, उनके इल्म को पहचानते जाएंगे, हमारे दीन को देखते जाएंगे, उनके दीन को पहचानते जाएंगे, हमारे हिजाब को देखते जाएंगे, हमारी खवातीन के हिजाब को देखेंगी, बीबी फातिमा के हिजाब का ख्याल आएगा। अगर बेटियों का ये आलम है तो कुछ माँ का क्या आलम रहा होगा। बज़ाहिर हम बाजार में अकेले जाते हैं, आप सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, नहीं, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने माँ बाप की। हमारे यहाँ की औरत बज़ाहिर जा रही है बाजार, स्कूल, कॉलेज या मजलिस में, महफिल में, शादी में, किसी मौके पर, लेकिन नुमाइंदगी कर रही है अपने माँ की। अगर खुदा न करदा कोई बच्ची बेहिजाब हो तो लोग क्या कहते हैं, ये माँ की तरबियत का है। बात कहाँ जाती है, माँ की तरफ, उंगली किधर उठती है, माँ की तरफ। लिहाजा माँ का तकाजा ये है, अगर माँ की ममता को चाहते हैं, उससे लगाव है, तो बीवी फातिमा को कभी नाराज न करें। माँ नाराज भी होती है ना, खफा भी होती है ना, खुश भी होती है। जब बेटा मर्जी के मुताबिक चलता है, बेटी मर्जी के मुताबिक चलती है, तो माँ खुश होती है, दिल से दुआएं देती है। और खुदा न करता खिलाफ मर्जी हो जाए तो माँ रंजीदा खातिर हो जाती है। ये मेरे चाहे वो मर्द हो चाहे खवातीन, माँ को तकलीफ पहुंचती है ना। जैसे मेरी गुजारिश है, जवानों, किसी हालत में रहना, ये जानना कि तुम्हारी माँ तुम्हें देख रही है, उसकी ममता तुम्हारे साथ साथ। खवातीन की बारगाह में मैं अर्ज कर रहा हूँ, कहीं रहेंगे समझ लीजिए, फातिमा की ममता आपको देख रही है, उसे रंजीदा खातिर नहीं कीजिएगा। और यकीनन याद रखिए, हम एक कदम उनकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं, वो गले से लगा देंगे, सहारा हम देंगे, आओ तो आगे तो आओ, आगे तो आओ, आगे तो बढ़ो। तो उन्होंने तारुफ कराया, अब हमारे बात तारुफ की बारी। हम मर जाएंगे, रोज़े महशर आएगा, फिर उनका इक़्तिदार, फिर तारुफ शुरू। बारगाह खुदा में हमें आपको कोई नहीं जानता, खुदा की अदालत है और फातिमा हम है। खुदा फातिमा को जानता है, हमें नहीं पहचानता, हमारे अमाल भी ऐसे नहीं है। माँ खड़ी होगी, अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी औलाद की औलाद है। हमें कोशिश करना, माँ की ममता का भरम रखें। ये माँ का सिलसिला खत्म हो सकता है, लेकिन उस माँ की ममता का सिलसिला जारी रहता है। बहुत सारी बात है, आइडियल बनाई है बीबी फातिमा को, मर्द और सब आइडियल बनाए। ये ना सोचे कि बीबी फातिमा खातून है तो आइडियल मर्दों के लिए नहीं बन सकती, सबके लिए आइडियल है। वक्त का इमाम फरमाता है, ली मेरे लिए, ली फी इब्नते रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, मेरे लिए जद्दा फातिमा उसवे हसना है। वक्त का इमाम मेहदी दौरा बीबी फातिमा अपना आइडियल बनाना। तो हमें भी आइडियल, क्योंकि वो भी बेटा है, हम भी बेटे,
हर बेटे की जिम्मेदारी अपनी माँ को आइडियल बनाए। इमाम हसन नस्र साहब फरमाते हैं नहनो यानी हम नहनो हम मासूमीन हम इमाम नहनो हुज्जतुल्लाह अलैकुम तुम्हारे ऊपर हुज्जत है, यानी अल्लाह की दलील है, तुम्हारे लिए आइडियल है। जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना बीवी फातिमा हमारे लिए हुज्जत नमूने अमल है। तो बीवी फातिमा आइडियल बनाए, हाँ जहाँ भी रहे बीवी फातिमा की जिंदगी आइडियल बनाए और उनकी जिंदगी से सीखना चाहिए प्रैक्टिकली। जिंदगी देखिए तारुफ प्रैक्टिकल से होता है, ख्यालात से नहीं होता। आपके ख्यालात में चाहे जितनी बुलंदी हो, दुनिया आपके ख्यालात को नहीं देखती, आपके ख्यालात के जरिए से जो अमल अंजाम पाता है दुनिया उसे देखती है। प्रैक्टिकली लाइफ में भी फातिमा को अपना आइडियल बनाइए। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, मुमकिन आपके जहनों में सवाल आए कि हम गैर मासूम कैसे उन्हें आइडियल बना सकते हैं, मासूम ने तो किया। कल भी मैंने बहुत सारी बातें की थी। फिजा मासूम थी, फिजा मुमकिन आपके जहन में आए या खवातीन के जहन में आए कि हम गुनहगार, हम गैर मासूम बीवी फातिमा को कैसे आइडियल बना सकते हैं। तो मुझे जवाब दीजिए, क्या फिजा मासूम थी? किस्मत की आगोश में पली थी, खानदान रसालत से थी, अरब थी, कुरैश थी? कुछ नहीं, एक अफ्रीकन खातून थी। और जो बेहतर समाज में बैठे यहाँ बैठे हैं जानते हैं, अफ्रीकी समाज के लोग हमेशा इल्मी और अखलाकी, इल्मी तहजीबी अखलाकी कल्चर के एतबार से बहुत पस्त रखे गए। उनके पास इल्म नहीं होता था, उनके पास हुनर नहीं होता था। जिनके पास इल्म और हुनर होता है वो गुलामी नहीं करते। उनके मर्द या गुलाम होते थे, उनकी औरतें या कनीज होती थी। पता चला गुलामी और कनीजी वही करते हैं जो इल्म से खाली होते हैं, हुनर से बेहुनर होते हैं। अगर इल्म और हुनर से आरास्ता हो जाए कौम तो कोई उसे अपना गुलाम नहीं बना सकती। इल्म और हुनर से दूरी गुलामी की अलामत है। क्या साहब देखिए, जितने गुलाम होते थे यही लोग होते थे। तो जाहिर सी बात है, एक शाही खानदान, एक रॉयल फैमिली की जो थिंकिंग होगी और जो गुलाम की होगी, जमीन आसमान का फर्क होगा। लेकिन अगर किसी गुलाम, किसी पस्त, किसी खादिम का बच्चा कामयाब हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? अगर ये कामयाब हो सकता है तो हमारे बच्चे कामयाब क्यों नहीं हो सकते? अगर ये कामयाब हो सकता है, इसमें इतनी सलाहियत है, तो मेरा बच्चा तो खानदानी इल्म का मालिक है, तो ये तो तरक्की कर सकता है। दूसरे लफ्जों में कहूं, एक मदरसे में दो बच्चे आए, एक मौलाना साहब का बेटा आया, एक मौलाना साहब का बेटा आया, एक खैर मौलाना साहब का आया। दोनों के नंबर में थोड़ा सा फर्क था। मौलाना साहब का बेटा चूंकि मौलाना के घर से आए तो आधा तो मौलाना था ही पहले से, आधी शरीयत आधा दिन तो जानता ही है। माँ बकिया मदरसे में हो जाएंगे। इम्तिहान हुआ, पहले इम्तिहान में कुछ नंबर इसके बेहतर रहे, दूसरा बच्चा था उसके कुछ नंबर कम आए। अब समझदारी देखिए, समझदारी और बसीरत देखिए। प्रिंसिपल ने इसको इनाम दिया जो मौलाना का बेटा नहीं था, जबकि नंबर उसके आए। तो बाद लोगों ने एतराज किया तो उन्होंने कहा अगर ये लाए तो कमाल नहीं किया, इसने किया तो कमाल किया। इनाम और इकराम का मालिक ये गैर मौलवी का बेटा है जो जीरो से शुरू करके यहाँ पर आया। यहाँ तो बहुत कुछ पहले से मालूम था, बस मुझे अब कहने की इजाजत दीजिए। यहाँ तो शायद तभी मुकम्मल
जनाब फिज़्ज़ा जनाब फातिमा को आइडियल बना के इस मकाम पे फायज हो जाए कि जिस तरह जनाब फातिमा कुरान से गुफ्तगू कर रही हैं उसी तरह फिज़्ज़ा कुरान से गुफ्तगू कर रही है। ये शबाहती तो है ना। अगर जनाब फातिमा कलाम इलाही में गुफ्तगू कर रही तो फिज़्ज़ा कलाम इलाही में गुफ्तगू कर रही है। अगर जनाब फातिमा के लिए खाने जन्नत आ रहा है तो फिज़्ज़ा के लिए नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ कि जनाब फातिमा के लिए आया फिज़्ज़ा के लिए नहीं आया। शबाहत देख रहे हैं। 3 दिन साइल ने आवाज दी अना फकीर। जनाब फातिमा ने रोटी दे दी, फिज़्ज़ा ने भी दे दिया। जनाब फातिमा भी रोजा से थी, फिज़्ज़ा भी रोजा से थी। अरे फिज़्ज़ा ये क्या कर रही हो? ये तो फातिमा है, तुम गैर वो मासूमा है, तुम गैर मासूमा हो। तो जनाब फिज़्ज़ा शायद आवाज दे, देखो मासूमा और गैर मासूमा का मसला नहीं है, वो मेरी आइडियल है, मैं उनकी शरीयत नक्शे कदम चलना और है, एहसासे बरबरी और है। फिज़्ज़ा जनाब फातिमा के नक्शे कदम पे चली है। जनाब फातिमा को देखती रही, वो रोजे से थी, फिज़्ज़ा भी रोजे से। जनाब फातिमा ने साहिल को रोटी दे दी, इन्होंने खादिमा है, कनीज है, इन्होंने भी रोटी दे दी। फिज़्ज़ा क्या कर रही हो? मैं अपने आप को भी फातिमा की शबीह बना रही हूँ। तो ये शबाहत का सिलसिला जारी रखें। मेरी गुजारिश है ख़वातीन हज़रात से, चूँकि अहम रोल समाज में, घर में, घराने में अहम रोल ख़वातीन हज़रात का होता है। खुदा इनकी तौफीक़ात में, उनकी सेहत में इजाफा करे, बहुत बड़ा रोल अदा करती है साहब। आप इनका शुक्रिया अदा किया करिए। लेकिन इनसे भी गुजारिश है अपने आप को बीबी फातिमा के नक्शे कदम पे चलाएं, फिज़्ज़ा की तरह। फिज़्ज़ा में इतनी समझ आ सकती है, एक कनीज में, एक अफ्रीकन औरत में इतनी समझ में आ सकती है। आप कनीज जाती तो नहीं है, आप कनीज तो नहीं है, आपका स्टेटस फिर भी बहुत बेहतर है। फिर मैं कह रहा हूँ, मेरा मकसद किसी को गिराना, किसी को उठाना नहीं है, सिर्फ एहसास जगाना है, एहसास जगाना। बात आई है तो मैं अर्ज करता चलूं, इस अय्याम फातिमिया है, इसके बाद 20 जमात इस्लामी को बीबी की क्या है? विलादत। सुभान अल्लाह। वाह। अब जाहिर सी बात प्रैक्टिकली करना है ना, मर्दों को भी करना है, औरतों को भी करना है। तो ये दिन कौन सा दिन है? 20 जमात इस्लामी बज़ाहिर विलादत का दिन है, लेकिन माँ का दिन है, मदर डे। इसको मनाना है मदर डे की तरह से। सिर्फ महफिलों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ शेर सुना सुना के काफी नहीं है। अच्छा, माँ की खिदमत में जाना है, माँ की खिदमत का शुक्रिया अदा करना है, और जो कोताही हो गई उसकी माफी मांगना है। तमाम हर एक, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो जवान हो, नौजवान हो, बच्चे हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चियां हो, सबसे हाथ जोड़ के बड़े मर्दबाना अंदाज में आपकी खिदमत में गुजारिश है, इस तहजीब को जारी करिए, शुरू करिए। माँ का दिन है, माँ का दिन है तो क्या मतलब? आज माँ का दिल खोल के शुक्रिया अदा करना है।
माँ की ममता का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमसे जो रंजीदा हो गई है उज़्र ख़ाही करनी है। हमने बहुत दिल दुखाया है माँ, हमने बहुत परेशान किया है, हमने बहुत अजियत दी है, माफ़ कर दो। और कहते हैं जब किसी के दिल को मोहना होता है, किसी से अपनी बात मनवानी होती है, तो कहते हैं खाली हाथ मत जाओ, तोहफा लेके जाओ। किसी को बात मनवानी हो, किसी को राजी करना हो, खाली हाथ सूखे सूखे नहीं चाहिए, तोहफा लेके जाइए। माँ की खिदमत में तोहफा अपनी हैसियत के बाद से, मैं ये मुझे नहीं करूँगी, ये ले चाहिए आप समझिए, कुछ नहीं तो एक फूल लेके जाइए, एक फूल लेके माँ की खिदमत में जाइए, शुक्रिया अदा कीजिए, माफी मांगिए। जाहिर सी बात है वो बेटे को देखिए कि सीने से लगा देगी, माँ सीने से लगा देगी। मुमकिन है ज़हनों में सवाल हो, यकीनन सवाल आएगा कि हम ज़ईफ़ लोग क्या करेंगे जिनकी माँ नहीं है, जिनकी माँ दुनिया से गुजर गई है, वो उनकी कब्रों पे जाएंगे। यानी कोई इससे अलग नहीं, इस कानून से, मदर डे के कानून से कोई अलग नहीं है। जिनकी माँ है खुदा उन्हें सलामत रखे, पूरे उम्र दे, वो अपनी माँ की खिदमत में जाए। और खुदा ने कहता है अगर किसी की माँ दुनिया से गुजर गई है तो वो उनकी कब्र पर जाए। जिंदा माँ की खिदमत में हदिया लेके गए, कुछ लेके गए थे, कब्र पर जाए तो सूरह फातिहा का हदिया। मादर गिरामी आया हूँ कबूल कर लीजिए। मादर गिरामी बहुत कोताहियां हुई है मुझसे, मादर गिरामी बहुत दिल दुखाया है, मादर गिरामी हमारे लिए आपने बहुत मुसीबतें बर्दाश्त की है, सबका शुक्रिया अदा करने आया। सब माँ की कब्र पर जाए, फिर कैसे जाना है बस वो हदिया किस तरह का ले जाए, सूरह फातिहा भी पढ़ लेते हैं। और इससे एक अच्छा और कालम नबी करीम फरमाते हैं मन ज़ारा क़ब्र मोमिन, जो मोमिन के कब्र की ज़ियारत करे, सुम्मा क़रा इन्ना अंज़लना सबा मर्रात अला क़ब्रिही, कब्र की ज़ियारत करे और कब्र के ऊपर 7 मरतबा क्या पढ़े, इन्ना अंज़लना 7 मरतबा, गफ़रल्लाहु लहू वलिसाहिबिल कब्र, परवरदिगार पढ़ने वाले की भी मग़फ़िरत करेगा, जिसकी कब्र में पढ़ा जा रहा है उसकी भी मग़फ़िरत करेगा। लेकिन चूंकि पढ़ने वाला एहसान कर रहा है, इब्तिदा कर रहा है, तो खुदा ने कहा तो सही, तुम इब्तिदा कर रहे हो तो पहले तुम्हारी मग़फ़िरत करेंगे, उसके बाद जिस पर तुम एहसान कर रहे हो उसकी मग़फ़िरत करेंगे, सलावत भेजेंगे। मर्द लोगों को एतराज होगा साहब हमारा भी कोई डे है कि नहीं, ऐसी बात है, इंसाफ बराबर समाज में बराबर चलना चाहिए। तो 13 रजब मौला कायनात की विलादत, मैं चला जाऊंगा याद रखिएगा, ये गार्ड बांध लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। 13 रजब फादर डे, यही काम करना है। एक हथिया लीजिए, बात की मेहनतों का, मशक्कतों का बहुत आप खिदमत करते हैं, बहुत परेशान होते हैं हमारे लिए, शुक्रिया। हमने परेशान भी किया, उसके लिए माफी चाहिए। अगर खुदा न करता बाप का साया दुनिया से उड़ गया है, अगर बाप है तो खुदा बंदे अलग साये को सालिम रखे, महफूज रखे, कायम रहे। खुदा न करता अगर इंतकाल हो गया है तो उसी तरह कब्र में जाइए, कुछ कहने की जरूरत से उसी तरह की कंडीशन। ये बात हो गई है। मुमकिन है कुछ अभी नए भी आए हों, जो समाज की बात आ रही है, फैमिली प्लानिंग में उरूज की बात आ रही है, तो जिनके क्या मुमकिन है औलाद न हो, तो मौलाना हम क्या करें। तो पहली जिल्हिज्जा जो अक़्द जनाबे फातिमा और मौलाए कायनात का दिन है। वाह 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 वाह,
की ढेरी अपने बाप की यादों को, भाइयों की यादों को छोड़ के आती है, कुर्बानी को देती है, आप नहीं देती। आपसे कहा जाए आप छोड़ दीजिए मेरे घर चलिए, तो बेवकूफ बना रखा है। हमारे माँ बाप की यादें यहाँ हैं, हमारे भाई बहनों की यादें यहाँ हैं, लेकिन ये कुर्बानी एक औरत देती है। ये औरत समाज की क्या होती है, रूह। जैसे इंसान के जिस रूह से एक इंसान मुकम्मल होता है, इसी तरह हमारा समाज जिस्म और रूह से मुकम्मल होता है। जिस्म का नाम मर्द है, रूह का नाम औरत है। और अगर रूह ना हो जिस्म में तो जिस्म मुर्दा कहलाता है। तो कुर्बानी औरत देती है, उस दिन उसका हम शुक्रिया अदा करें, खातून का शुक्रिया। आप हमारी खातिर हमारे बच्चों के लिए आप सहमत कर रही हैं, सवेरे क्यों उठती है आपके बच्चों की खातिर, लिहाजा उसने फिर भाई शुक्रिया का। अगर किसी को राजी करना है तो क्या करें, एक तोहफा दीजिए। साल भर आपकी खिदमत कर रही है, साल भर आपके बच्चों की खिदमत कर रही है, आपके नस्ल की खिदमत कर रही है। लिहाजा उस दिन ये आप सेवा बना लीजिए, तहसीब बना लीजिए, उस दिन उसका शुक्रिया अदा करें और उससे माफी की भी कोताही हो गई। कोताही भी होती है, मर्दों से होती है, माफी मांगे। तो ऐसा ना समझिए कि हम मर्द हैं तो हर जगह हमारी चलेगी, उसकी चलेगी, बीबी फातिमा उसकी भी सुनेगी। लिहाजा खुदा न करता उसकी चल जाए, उसका भी शुक्रिया अदा करें। तो ये तीन ज़हमतें मैंने आपको दी, आपकी खिदमत में तीन गुजारिश है, इसे याद रखिएगा। और बहुत सारी बातें कहनी थी, आज वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे माफ कीजिएगा, माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो गया। बीवी फातिमा की ममता को अपने सीने से लगाए रहिए, हर बात भुलाए नहीं, क्योंकि वो हमें भूलती नहीं है। जब भी मुसीबत पड़ती है हम भूल जाते हैं, उन्हें भूल देते हैं, भुला देते हैं, फरामोश कर देते हैं। लेकिन जब भी मुसीबत पड़ती है हम कहते बीबी फातिमा मदद कीजिए, और मदद के लिए आ जाते हैं। जो हर कदम अपने बेटों की मदद के लिए, तो बेटों की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी माँ को जितना हो सके उतना याद रखे। कौन सी माँ जहाँ 18 साल में ब्याह नहीं होता, दुनिया से मुसीबतों मसाइब झेलती हुई 18 साल की उम्र में दुनिया को खैर बात कर रही है। अभी नबी के कफन, अभी नबी का कफन मैला भी न हुआ था, पर मुसीबतों की इब्तिदा हो गई। नहीं, बीबी फातिमा को तो सब पता था। बीबी फातिमा शायद अपने लिए नहीं रो रही थी, अरे अपने बाप की मुसीबत के लिए रो रही थी। अरे मेरे बच्चों पे ये आलम आएगा, मेरा हसन जहर में शहीद किया जाएगा, मेरा हुसैन करबला में, अरे मेरे बाप अली तन्हा हो जाएंगे। मेरे बाद अली तन्हा हो जाएंगे। पूरे मसाइल, पूरे मक्तल को उठा के देख लीजिए, पूरी जिंदगी पूरे मक्तल को देख लीजिए। जनाब फातिमा ने कभी कोई शिकवा, कभी कोई शिकायत मौलाए कायनात ने की। दरवाजा पहलू पे गिरा दिया गया, तसलिया शिकस्ता हो गई, शिकम मादर में जनाब गौसी की शहादत हो गई, दरवाजे पे आगू रबड़ी जमा की गई। अरे मुस्ततासी आना पड़ा, बाजू में मरवा गए। अरे आपने देखा, अगर सर्दी लग जाए, सीने में ठंडक लग जाए तो सांस का लेना दुश्वार हो जाता है। अरे जरा तसव्वुर करें,
آئے ہاتھوں کو جڑا شہزادی کوئی محمد کہاں بلال؟ بلال اہل مدینہ ہمیں بھول گئے کیا تم بھی بھول گئے؟
پروردگارہ تمام مرحومین مرحومات خاص طور سے حاضرین کے مرحومین والدین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما دے۔ پروردگارہ اپنی آخری حجت امام زمانہ کا جل ظہور فرما، ان کے اعمال انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسمیع الدعاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔